Yeah, Amruti, please introduce yourself. Good evening, sir. First of all, thank you so much to giving me opportunity to introduce myself. I am Amrut Vijay Ghadge and belong from Panvel, Maharashtra. I have completed my graduation in BSc Botany from Mumbai University and BCA from Tilak Maharashtra University. I have completed my bachelor in physical education from Singhania University. After that, I worked as an archery coach in a Kendriya Vidyalaya ONGC Panvel. Now I am working as a TGT physical education teacher in a Greenfinger Global School, Kharghar, from 5 years. I am practice yoga for 2 years in a Ambika Kutir at Mumbai. As well as I have done 10 days meditation course called Vipassana twice in 2009 and in 2016. My personal sport specialization is archery, and I have completed certification course for state level archery judge in 2019. I have worked as an official as well as volunteer in a many state level archery competitions. Also, when I am serving as a archery coach in Kendriya Vidyalaya ONGC Panvel, that time we conduct regional level Kendriya Vidyalay's regional level archery competitions in 2017. My personal achievements are I am won one gold medal and one bronze medal in Mumbai University archery competitions. Same year, I participate in All India University archery competitions. I have won one gold medal in Mumbai Mayor Cup national archery competition also. I am hardworking, I am punctual, and my strengths are I am good in communication skill and I am adaptable for any conditions. I can learn from any situations. That's it about me, sir. When you had completed your BSc? In 2010. After that, BCA? Sir, same year I completed my BCA also. BCA is a correspondence course. That means in the earlier days, you are not interested for sports, BPA. Yes, sir. That's why you had done BSc Botany, BCA, all other degrees apart from BP. Yes, sir. I am started my archery when I am pursuing my MSc. That time I started my archery and I moved towards sports. Okay. Why you are not proceed in the field of MSc only? Why you want to become a sports teacher? So initially I am not started career as a sports teacher. Initially I focused on my archery competitions and my personal performance. And after that, I gradually increased my interest in sports. You have a degree of BSc and you have pursued MSc also. Then why you want to become a sports teacher? Sir, I have not completed my MSc. After that, I completed BPEd, and that time I get interest in teaching and archery coaching also. Okay. For how many years you have done the job of archery course in KVS? 2 years, sir. 2 years. And right now you are working as a TGT PhD? Yes, sir. How many years of experience you have? 5 years in a current school. 5 plus 2, 7. Yes, sir. What difference you got in KV and now your present school? Sir, in a Kendriya Vidyalaya. Sir, I like to explain it in Hindi. If you are... सर केंद्रीय विद्यालय में जब मैं जॉब कर रहा था एक्चुअली तब मेरा बहुत इंटरेस्ट पड़ गया था टीचिंग में, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरमेंटल था स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव था। वहाँ के स्टाफ जो मेरे प्रिंसिपल थे मिस्टर रंजीत सिन्हा, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था और मुझे इन्वॉल्व कर लिया था उसमें। वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए उन्होंने अलाउड किया, प्रैक्टिस के लिए अलाउड किया था, इक्विपमेंट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए थे, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे मैं परफॉर्म कर सका और वो स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे हमें जब यहाँ पे जहाँ कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है सर, लेकिन कंपेयर टू केवी स्पोर्ट्स के लिए उतना फोकस नहीं है, क्योंकि उनका अदर रेगुलर सब्जेक्ट्स के लिए उनका फोकस ज्यादा रहता है। तो आपने केवी छोड़ के क्यों इसमें ज्वाइन किया? सर केवी कॉन्ट्रेक्चुअल था ना सर, आर्चरी कोर्स था वहाँ पे, और यहाँ पे एज अ टीजीटी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो ये आपका परमानेंट है? यस सर। ओके। एनीवे, हाउ विल यू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर आर्चरी? सर बेसिकली मुझे लगता है कि कोई भी गेम के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए उन्हें फील करवाना जरूरी है। तो इनिशियली तो मैं उनको वीडियोस दिखाता हूँ या फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इमेजिनेशन करने के लिए मोटिवेट करता हूँ, और जितनी जल्दी हो सके उनको ऑन फील्ड परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता हूँ। ओके। यू हैव डन द कोर्स ऑफ मेडिटेशन आल्सो? यस सर। व्हाट इज द प्रॉपर एज टू स्टार्ट द मेडिटेशन? किस एज ग्रुप के बच्चों को मेडिटेशन स्टार्ट करा सकते हैं? सब मेडिटेशन हमें पीस ऑफ माइंड देता है,
इसके लिए एज की जब बच्चे खुद से मैच्योर हो सके तभी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम जो कोर्स मैंने किया है विपश्यना, उसके लिए हम एज ग्रुप मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं सर, उनको बेसिक चीजें। फर्स्ट क्लास के बच्चों को मेडिटेशन करा पाएंगे? यस सर, सर नॉट एग्जैक्टली मेडिटेशन, बट उनको मेडिटेशन के लिए तैयार कर सकते हैं सर। तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन? सर मेडिटेशन हेल्प्स टू prepare you for a concentration. Meditation, please repeat. So meditation help to improve your concentration power. That is the difference only? Sir, I'm not able to answer. If meditation helps to develop concentration, then yes, without concentration, how someone will do meditation? जैसे आपने बोला मेडिटेशन से कंसंट्रेशन डेवलप होता है। यस सर। तो कंसंट्रेशन अगर नहीं है तो मेडिटेशन कैसे? सिर्फ मेडिटेशन में हम लोग कुछ तो ऑब्जेक्ट का मतलब प्रोसेस यूज करते हैं कि आपका कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली बना रहे, जैसे कि हम लोग ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं, कुछ चीजों में काउंटिंग पे फोकस कर सकते हैं, कहीं पे कुछ मंत्र यूज कर सकते हैं, तो उससे आपका कंसंट्रेशन डेवलप होता है। तो कंसंट्रेशन है क्या एक्चुअली? टू वर्क फोकस रहना और उस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना एक ही चीज पे जो आपके करनी है वो। ओके, Can you tell me something about purchase process? Yes sir. 7 years of experience है, including KV. Yes sir. बोलिए। सर परचेस ऑर्डर के लिए हमारे पास जो ऑलरेडी इक्विपमेंट अवेलेबल है उसकी हम लोग पहले लिस्ट निकालते हैं, फिर जो हमने प्रपोज किया है नेक्स्ट ईयर के लिए जो चीजों के लिए उनकी एक अलग से रिक्वायरमेंट की लिस्ट निकालते हैं, फिर वो कंपेयर करके हम लोग फाइनल लिस्ट बना देते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, फिर वो हम हमारे जो सीनियर्स है जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर कोऑर्डिनेटर्स उनसे डिस्कस करते हैं और उनके साथ प्रिंसिपल मैम से डिस्कस करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनका क्या बजट है और क्या प्रोसेस रिक्वायरमेंट से वो कट डाउन करके हमें फाइनल लिस्ट देते थे। उसके बाद हम कोटेशन मंगाते हैं, जो भी लोवेस्ट प्राइस रहेगा वो हम लोग मंगाते हैं सामान। Nowadays in school so many students are suffering from stress. Can you repeat please? आज के डेट में स्कूल के बच्चों को स्ट्रेस बहुत होता है। Yes sir. Students who are going to appear in the board exam. Yes sir. बच्चों को बहुत स्ट्रेस है ना? Yes sir. Now you are special in yoga also. You have done the course of meditation also. Yes sir. So what type of stress management technique you will suggest them to get relief from stress? Sir, stress management it's a process. We have to practice for it. It is not we can tell them in a single session and they can overcome. So before 6 months only we have started them for a 10th class students to start meditation and watch the effect on your studies. मतलब जो वो मेडिटेशन कर रहे हैं उसका उनके स्टडीज पे क्या इफेक्ट करना है वो उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहेंगे। मेडिटेशन में जितना टाइम वो देंगे उतना उनका फोकस भी बढ़ेगा और स्ट्रेस मैनेज भी अच्छे से कर पाएंगे। Is meditation is the only way to manage the stress? No sir, yoga asanas are also good for stress management. तो किस तरह के योगा उनको सजेस्ट करेंगे? सर एक्चुअली बच्चे 10th के 12th के जो बोर्ड एग्जाम के लिए वो कंटिन्यूअसली सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, कंटिन्यूअसली स्टडीज करते रहते हैं, तो उनकी बैक बोन से रिलेटेड जो आसन है और सिटिंग पोजीशन में जो आसन है, वज्रासन हो गया और बाकी आसन अर्ध पद्मासन, पद्मासन, ये सारे आसन करके उनके सिटिंग पोस्चर डेवलप करेंगे और जो सिटिंग पोस्चर डेवलप करते हैं उसी के साथ ब्रीदिंग रिलेट करके हम लोग उनका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस अच्छे से वो मैनेज कर पाएंगे। ओके, कैन यू टेल मी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन? यस सर। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? टू क्रिएट अच्छे इंसान बनाना, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ डेवलप करना और उनको अच्छा नागरिक बनाना। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अमृत जी। यस सर। आप इतना डरे से क्यों हो? सर थोड़ा नर्वस हूँ। हाँ, आपका आंसर बता रहा है आप नर्वस हो। यस सर। है ना, इसीलिए पहले इंट्रोड्यूस करने दिया जाता है ताकि नॉर्मल हो जाए, है ना? राइट सर, नॉर्मल रहिए। इतना डरने के लिए देखिए, या तो आपको आता होगा आंसर या नहीं आता होगा, दोनों में से एक होगा, लेकिन इतना अगर आप नर्वस होकर बैठेंगे जो आता है वो भी आप क्लियर बोल नहीं पाएंगे। आप कंफ्यूज हो, आंसर इंग्लिश में देंगे। राइट सर।
है ना। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इसलिए हर आंसर में आपने कोशिश किया इंग्लिश से शुरू करूं, बट आपको लगता है नहीं हो पाएगा, फिर 2 वर्ड के बाद हिंदी में स्विच हो जाता है। आप अपना माइंड में का पहले कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हिंदी में जाएंगे तो भी कोई नहीं, बट एक माइंड सेटअप बना लीजिए, इतना हैप्पीजार्ड मत होइए, है ना। सर इंग्लिश में इमोशंस एक्सप्लेन करने के वक्त थोड़ा सा आपको नहीं कर पा रहा, हिंदी में करिए, ठीक है सर, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपके आंसर अगर ऐसे हिंदी इंग्लिश मिक्स होकर अगर टूट जाएगा आंसर, अगर आंसर का कोई फॉर्म नहीं होगा, फिर तो आपके आंसर का कोई नहीं है ना। तो इसीलिए पहले आप अपना माइंड सेटअप बनाइए, आपको किस में देना है, जिसमें देना है उसमें कॉन्फिडेंटली, नहीं पता वो भी कॉन्फिडेंटली बोलिए, सर ये नहीं पता है, ये आई विल ट्राई। अगर पता है उसको कॉन्फिडेंट आंसर दीजिए। ओके सर। जो भी आपके जितने भी चीज आपने इंट्रोडक्शन में बोला है उसके ऊपर थोड़ा सा बच्चों से रिलेट करके देखते जाइए। लाइक मेडिटेशन हम किस एज ग्रुप के बच्चों से करा सकते हैं, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन का डिफरेंस है, थोड़ा सा उसको आप घुमाने की कोशिश किए, लेकिन उसको देख के आइए। पता है आपने उसको घुमाने की कोशिश की है ना, बट उसको प्रॉपर डिफरेंस देख लीजिए, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन का प्रॉपर डिफरेंस, ठीक है। बाकी आपके जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से और थोड़ा बहुत आपके स्कूल के प्रोसेस चैलेंजेस ये सब देख लीजिएगा। अभी टाइम कम है इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन नहीं किया, अदरवाइज आप जब केवी के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 2 साल के, तो आपसे पूछा जाएगा आपने उस समय आपको किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए, आपने स्पोर्ट्स के कल्चर में क्या देखा केवी में, और आपको केवीएस और प्राइवेट स्कूल दोनों के एक्सपीरियंस है तो आपसे दोनों के डिफरेंस भी पूछेगा। तो उस एंगल से आपको थोड़ा सा रेडी कर लिया। आपने आर्चरी का नाम लिया है, आर्चरी का भी एज ग्रुप, किस एज ग्रुप से आर्चरी को करा सकते हैं हम लोग? यस सर। आपके पास मेडिटेशन है, तो हाउ मेडिटेशन विल हेल्प टू प्रिपेयर आर्चरी स्टूडेंट्स, क्योंकि आर्चरी के बच्चों को मेडिटेशन चाहिए होता है, तो आर्चरी और मेडिटेशन को लिंक करके क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, हाउ मेडिटेशन विल हेल्प फॉर द आर्चरी स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जितने भी पार्ट है आपके इंट्रोडक्शन में उसको लिंक करके कैसे होता है, क्यों होता है, इन सबको एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। यस सर। मैनेजमेंट थ्रू योगा थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक टॉपिक ही है बच्चों की, यस है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा एक टॉपिक बच्चों के लिए भी है, तो उसको थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए, प्रॉपर बना लेता हूँ सर उसका आंसर, प्रॉपर उसको फॉर्म कर लीजिए। यस, थैंक यू सर।